te tene dine yi press conference po chi pe nge ma durdusina jin te ngadang sangma to gi sinok tene ngata Ladakh gangme shamtot parsumina tene nganmai na tene ngata yulina gobe sirka yote no khale kabe tene yuli chi largya luksum ngata chi chagla sikzadan nang gobe zadan skyodat kyak innang tene tangada I kula tusna nyampo tene ngata I Gilja Saman Yonongskak, Pedna Panchati Raj Yongskak, the Natsuat in the Ladakh Autonomous Hill Development Council, then a consular Raj Yongskak, the Natsuat in Daksa, UT in Hale, some Pasana, then Ibeka, then Daksa Ashistle, then a Kongma, renowned environmentalist, then a young Gagar Matat Zambulina, then a Kongma social activist project, then a ma halashis tene kuyon chenmoyot kane tene tene azuk sik juk teno somba khongune tene kalpawri jinna tene organization jik ka pune base khayot ka khongne mangcha tene tribal communities na nyapo chaglat jarat ka Gujarat jarat choga Sikkim jarat choga Ladakh Spiti jarat choga Ladakh jarat chok tene yultu mang pone kane azuguna chaglat jada ni ka tebena mangcha tene khong tribal gune azuki kha ma bo chaglat jada ni khali sompa tene Ladakh senang tene vikalp sangam yutte khone chaglat jada ni yote no tene khong I tene ujuk sena I study o khone जाच्चे से आजुको छिरकाव तने खोय गोजुगा जत तने ngजा ngata laksana yutkane gere chokpa NGOs pe na ngata SLC Snow Leopard Conservancy and Trust tene ngja NCF Nature Conservation Foundation yang local feature jete yang ata gere chokpa gite no tenna choga Ladakh Arts and Media lamo ngja tene chokpa ji khwa tene jepsi chok juste tene halam lo is sang logic nang phachi ngala tene yul nang ko tene yul nang ko ytkane goba changma nang sarpanch nang tene ama chokpa nang tene stakeholder changma nang thukte tene ngata nganme goba gunang dakse goba gunen na gyurja chamji gyong tok tene daksa ngata chagla jatche se nang ko chamji gyurja yong tok tebe thoga tene khonge ngaje study jospen spelna shame nang study jos ke tene gyamiru na jos ke tena choga changtang gangme na ngaje jospen songpa sana mangchat tene I azuk pena ha guru ki tene gobe sirka o tene terwang mamang po krang gyanang ne gechu choksik ata dulin yotik du teo tene changme teo zat molduki chaw iu luz go sejeno teve kolla tene asis le nang sristile detail mola da cheseno sompa tebe tene dubda chiktal da chigiting tene ngata pura document jingata study report ngata ready chache jeno sompa teo ngatang changme tene ibi thokpeka I last thokpeka tene asisle nangaya changma ngata LG sab nang thukte tena choga dang rang tene ngata I ngata commissioner secretary nang thugata te tene ibe tene dubdas nang chirik dukpo tene presentation full tena choga tene CC sab nang po thukche se sirka inok tena choga ngata LBA nang po ka ngata I changma report fulte Ladakh sena ta samjik ngata azu stakeholder yotan mana yang petukte tene ibe azuk kola gyus chese chundus chese no somba tene tebe kola tene daksa asisle mola zachen no nge nyampo tene iwang jun samarak tene tena ina ta dachi ki dubdas dubte tingne tene maung pe nangko tene Ladakh gangma shamtot parsu me tene samji goba yot hale te goba gun nyampo tene mega gathering ngata meeting jik ka nyan nanga je jakpo ni sumji ki nangko workshop trap choksi ga zachen chundus jin sompa nge diring ikane taksa nije sapar gyute nge chapi iu jun samarak ki niya suji ga ziksar nang thore September chokski na ngaji I sirka guzuk choche se kalte julon lebat na ya media gyute lebat na ya juik gyute lebat na ya kazuk sigal lebat na te jaga nija sangma karmet kyoda jate ika I meeting bina thusa jat chi juna iu tene lak sena tonsa chmo jik tene ma khakchan jik che dana gobe sirka manyam se lusi sipi chi kangal bardo dukte ngata kula ta ngatang che jana nganma na I lambardiri ek jete ngata janti na yu jane dukte bina ko chapik sik ta ngatang youtube pasang tai laksa ngata sirke nang ko gyurgya 총 년치 두가 대 상황 같은 상에 투잡 자체세피아 니자 상황 냠포에 이왕 지와 플랜 송파 이삼직 진테네 아시스레 되는 니자 시리스텔레 되는 아지 이 स्टडी बिना चीज थप yang चीज रिकमेंडेशन देखि योते होते ने कोने डिटेल मोड से थजे छे
थैंक यू, धन्यवाद करमल जुले। मेरा नाम आशीष कोठारी है, मैं कल्पवृक्ष पुणे से मैं काम करता हूँ और लद्दाख में हम लोगों का कई सालों से यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहा है अलग अलग चीज़ों में। तो ये जो हमने स्टडी किया गोवा पे पिछले लगभग 1 साल में, उसमें मुख्य हम लोगों ने क्या पाया वो हम थोड़ा सा संक्षिप्त में बताते हैं। एक तो ये कि पूरे भारत भर में इस तरह की जो एक पारंपरिक या ट्रेडिशनल गवर्नेंस का जो सिस्टम था लगभग ख़त्म होने को आया है, लेकिन लद्दाख, सिक्किम कुछ ऐसी जगह पे अभी भी बचा है। तो लद्दाख में हमने पाया कि गांव में अभी भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सिस्टम। पंचायत आ गया है लेकिन फिर भी गोबा का सिस्टम और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसमें काफ़ी फंक्शंस है अलग अलग, जैसे कि बुआई कब करनी है, सोइंग कब करना है, हार्वेस्टिंग कब करना है, चांगथांग में कब हर्ड्स को जो है एक जगह से दूसरी जगह जानवरों को ले जाना है, अगर 2 कम्युनिटीज़ के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उनके बीच में झगड़ा को कैसे निपटाना है। फिर हर गांव में वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जानवरों का पॉपुलेशन है, इस सब का पूरा रिकॉर्ड रखना। सरकार के साथ जो रिलेशनशिप रखना है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा गोबा करते हैं, सरपंच से भी ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा पानी का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे है, वो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन भी किस तरह से सबको बराबर तरीके से मिले। ज़मीन के बारे में अगर कोई झगड़ा हुआ तो उसको निपटाना। तो इस प्रकार के बहुत सारे सांस्कृतिक भी बहुत फंक्शंस हैं। कई जैसे लोसर का फेस्टिवल है, दूसरे फेस्टिवल्स है, उसको गांव-गांव में जो मनाना है उसका भी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी गोवा पे पड़ता है। गोम्पा के साथ रिलेशनशिप जो है वो भी गोवा के थ्रू है। तो सब मिला के हमें पता चला कि गोवा का रोल अभी भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और लोग जो हैं उसको अभी भी सबसे ज़्यादा मान्यता देते हैं। वो कहते हैं सरपंच है, ठीक है, बराबर है, विकास के कार्यक्रम आते हैं सरपंच से, लेकिन हमें गोवा में ज़्यादा फेथ है। इसका एक और कारण ये भी है कि गोवा बहुत पुराना सिस्टम है, लोगों का अपना सिस्टम है। हाँ, डोगरा रूल ने उसको मान्यता दी और इंडिपेंडेंस के बाद नंबरदार एक्ट में भी उसको रिकग्निशन मिला, लेकिन लोग कहते हैं कि ये हमारा अपना सिस्टम है। पंचायत तो बाहर से आया है, गोवा का हमारा अपना सिस्टम है। और उसमें ये भी कहते हैं कि पंचायत जो है वो इम्पॉर्टेंट है लेकिन वो पॉलिटिकल फंक्शन बन जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ उसमें आ जाती हैं, इलेक्शन होते हैं। गोवा जो है वो न्यूट्रल है, तो इसलिए भी हमें वो बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। इस सब को होते हुए भी हमें ये लगा कि गोवा का रोल का उतना रिकग्निशन, उतनी मान्यता सरकार द्वारा अभी नहीं है। लंबादारी एक्ट में जो कुछ फंक्शंस हैं वो तो हैं, लेकिन ये बाकी सारे इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ जो गोवा रोल प्ले कर रही है वो उसकी मान्यता अभी नहीं है और कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं है, सफाई नहीं है कि गोवा सरपंच, हिल काउंसिल और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए, किसके क्या फंक्शंस हैं, किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, वो एक्चुअली क्लैरिटी कम है। दूसरा ये भी हमने पाया कि यद्यपि पहले गोवा का रोल बहुत लोग चाहते थे कि मैं गोवा बनूं, अब वो थोड़ा सा बदल रहा है कि लोग कहते हैं कि नहीं, अब तो हमारे लिए एक बहुत मतलब बोझ बन गया है, क्योंकि मेरा अपना काम भी है, ऊपर से गांव का काम भी करना पड़ रहा है। पहले क्या था कि गांव के लोग भी बहुत मदद करते थे कि आपको हमने लाइफ स्टॉक दे दिया, या आपकी भेड़ बकरी है तो हम चराने के लिए ले जाएंगे, या जौ दिया, या अलग अलग प्रकार से जो है गोवा को मान्यता मतलब गाँव के लोग सहायता करते थे। अब वो थोड़ा कम हो गया है और सरकार जो एक देती है 1500 रुपये पर महीने कुछ देती है, उससे कुछ खास बनता नहीं है, क्योंकि उनका उतना खर्चा ही हो जाता है। एक बार भी अगर लेह में मीटिंग के लिए बुला दिया तो उतना खर्चा लगभग 500-600 रुपये हो गया। किसी ने यहाँ से सरकार ने कोई नई स्कीम डाली तो गोवा सब पूरे गांव में बताएगा जब तक फ़ोन पे, तो उसका उतना खर्चा हो जाएगा फ़ोन का। तो वो कहते हैं कि इससे हमें बनता नहीं है, इसलिए अब गोवा का रोल ज़्यादा लोग प्ले करना नहीं चाह रहे हैं। तो वो पहले जो एक 4 साल 5 साल, कहीं जगह पे तो 20-30 साल के लिए गोवा रहते थे, अब 1-1 साल में जो है घर घर में वो रोटेशन सिस्टम आ गया है कि हर घर को एक जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको देना ही करना ही पड़ेगा। तो ये सब कुल मिला के, हाँ, दूसरा ये भी हमने पाया कि जहाँ पे पारंपरिक आजीविका, ट्रेडिशनल लाइवलीहुड थोड़ी कम हो गई हैं, वहाँ पे भी कुछ गोवा का रोल कम हो गया। जैसे ले टाउन में, ले और इसके आसपास, क्योंकि ज़मीन का उतना वो नहीं रहा है, भेड़ बकरी रखने का, जानवर रखने का उतना नहीं रहा है, तो इसलिए थोड़ा रोल कम हुआ है। लेकिन फिर भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। एक और ट्रेडिशनल वीकनेस इसमें हमें लगा कि ज़्यादातर गोवा जो हैं मर्द होते हैं और बुज़ुर्ग मर्द, ओल्डर मैन, महिला बहुत कम। कुछ जैसे चुमाथांग में 1-2 महिला गोवा मिली, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि उनके घर में जो मर्द थे वो लेह में थे, तो इसलिए उनको बनना पड़ा। तो महिला कम और युवा लोग भी कम, तो इसमें भी कुछ फेरबदल लाने की ज़रूरत है। तो इन सबको मिला के फिर हमने एक पूरा रिकमेंडेशंस का सेट दिया है सरकार को, अभी और आगे देने जा रहे हैं।
तो वो जो हमारे सुझाव है, रिकमेंडेशंस है, उसके बारे में सृष्टि थोड़ा बता देगी। ठीक है, सभी को झूले। मैं सृष्टि वाजपेयी, मैं भी कल्पवृक्ष संस्था के साथ काम करती हूँ। तो जो कर्मालय और आशीष ले ने शेयर किया उससे हमारे कुछ की रिकमेंडेशंस हैं। पहला तो ये कि गोबा का रोल, क्योंकि लोगों के अभी भी लोग उसे इम्पॉर्टेंट मानते हैं, इसलिए ज़रूरत है कि सरकार की तरफ से कुछ सोशल या फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाएं। सोशल में ये कि जिस तरीके के भी कोई फंक्शंस होते हैं सरकार ऑर्गेनाइज़ करती है, उनमें गोबास को रिकग्निशन दिया जाए, जैसे वेल परफॉर्मिंग गोबा हुआ या ऐसा कुछ कि अगर गोबा कुछ अच्छे काम कर रहे हैं तो उसको रिकग्नाइज़ करें। दूसरा ये कि फ़ाइनेंशियल इंसेंटिव्स, कई लोगों ने हमसे ये बताया था कि अगर वो पंचायत सरपंच के साथ जाते हैं तो उनके एक्सपेंसेस को रीइंबर्स कर दिया जाता है, लेकिन गोबा के एक्सपेंसेस को रीइंबर्स नहीं किया जाता। तो एटलीस्ट जो भी सरकारी काम गोबा कर रहे हैं उनके एक्सपेंसेस को रीइंबर्स किया जाए, और अगर सैलरी उनकी थोड़ी बहुत बढ़ाई जा सकती है तो वो बढ़ाई जाए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका ये है कि जो हमारी हिल काउंसिल की एक्ट है और जो पंचायत एक्ट है उसमें कहीं पे भी गोबा का मेंशन नहीं है। सो एक क्लियरर लाइन ऑफ सेट ऑफ रूल्स कि गोबा का क्या फंक्शंस हैं, उसके वो फंक्शंस पंचायत, सरपंच, हिल काउंसिल, काउंसलर और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में अब कैसे फिट होते हैं। लद्दाख विजन 2030 में गोबा के स्ट्रेंथनिंग की तो बात की गई है, लेकिन अभी तक उसके प्रति कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। तो हमारा एक ये भी रिकमेंडेशन है कि ऐसा होना चाहिए। हमें ये भी लगता है कि गोबाओं की आवाज़ को साथ में आना भी बहुत ज़रूरी है। तो गोबा लेवल, एक लद्दाख लेवल एसोसिएशन गोबा का होना ज़रूरी है, जो सरकार द्वारा मान्यता भी प्राप्त करे। वैसे इनफॉर्मली खारू में जैसे एक एसोसिएशन है और लोग मिलते भी हैं, पर इसका एक सरकार द्वारा उसका एफिलिएशन होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा हमें लगता है कि जो लद्दाख में बहुत समय से 6 शेड्यूल के बारे में और 5th शेड्यूल की जो डिमांड रही है वो गोबा के लिए एक्चुअली बहुत ज़रूरी रहेगा। तो उसकी स्ट्रेंथनिंग और उसका रिकग्निशन, गोबा की रिकग्निशन और कस्टमरी प्रैक्टिसेस के रिकग्निशन के लिए भी ज़रूरी है। तो सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और जो गांव के लेवल पे थिम्स होते हैं, लोकल कस्टम्स होते हैं, वो समय के साथ थोड़ा हमें ऐसा लगा इवॉल्व नहीं हुए हैं। जैसे कि पर्यावरण बदलाव हो रहा है या वेस्ट मैनेजमेंट का इशू है, इस तरह की चीज़ों पे लोगों ने अभी अपने थिम्स को रिवाइव नहीं किया है। तो ज़रूरी है कि ऑल्सो गोबा और कम्युनिटी लेवल पे, समुदाय के लेवल पे इन पे थोड़ी और चर्चा हो। और हमें लगता है कि इन सारे इंसेंटिव्स की वजह से कुछ और महिलाएं, यंग लोग शायद गोबा बनने में इंटरेस्टेड हों, क्योंकि इसमें थोड़ा रिकग्निशन रहेगा। और लास्ट एस्पेक्ट ये है कि 2017 में सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जो अब इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिसमें गोबा की एज को 60 साल के लिए कर दिया गया है। जितने भी लोगों से हमने बात की उन्होंने कहा कि 60 साल की एज सही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ट्रेडिशनली गोबा एक ऐसा इंसान रहा है जिसको गांव के बारे में बहुत पता होता है, तो 60 साल एक सही उम्र नहीं है। और दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग गाँव से बाहर काम कर रहे होते हैं, तो जब वो फ्री होंगे, रिटायर होंगे, तभी वो गाँव में वापस जाकर गाँव में पूरी तरीके से काम कर पाएंगे। तो इस वजह से वो ये 60 साल की रिकमेंडेशन से सही नहीं है। तो हमारी भी यही रिकमेंडेशन है कि इसका बदलाव हो, तो करीबन 65 साल इसका उम्र की जाए। तो ये हमारी कुछ की रिकमेंडेशंस थी जो हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, गवर्नर साहब को और डीसी साहब को भी ब्रीफली बताए हैं। एंड वी होप कि आप मीडिया द्वारा ऑल्सो ये थोड़ा बाहर जा सके और स्पेशली गोबाओं तक पहुंच सके, तो थोड़ा उनका कलेक्टिव आवाज़ पे आ सके। ये भी हमने देखा कि अब तो ज़्यादातर जगह पे पंचायत आ गई है। लद्दाख में लेट आई, लेकिन फिर भी अब तो आ गई है। कुछ जगह पे जैसे चांगथांग में बहुत वीक है, लेकिन है पंचायत। तो इन दोनों के बीच का हमने रिश्ता देखा कि ज़्यादातर जगह पे अभी भी कॉम्प्लीमेंट्री है। सरपंच जो है गोबा को कंसल्ट करते हैं, गोबा सरपंच को कंसल्ट करते हैं, लेकिन कुछ जगह पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं। गोबा को लगता है कि अगर मेरा जो रोल था वो सरपंच ने ले लिया है, सरपंच को लगता है कि गोबा अभी भी क्यों है। कभी अगर वैसे तो गोबा का पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन नहीं होता है, लेकिन हाँ हो सकता है कि कुछ उसकी भी लीनिंग्स हो कि हाँ मैं कांग्रेस या बीजेपी, और अगर सरपंच दूसरे का हो तो उसमें भी कभी कभी झगड़ा होता है। तो लेकिन जैसे सिक्किम में जुम्सा सिस्टम है या कई और जगह पे भी जो रिकग्नाइज्ड है कि पंचायत भी साथ चले और उनका जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो भी साथ चले। पंचायत का रोल डेवलपमेंट का है, विकास की जितनी भी स्कीम्स वगैरह आती हैं वो आएंगी, लेकिन गोबा के फंक्शंस और बहुत सारे हैं। जैसे झगड़े निपटाने की बात है वो सरपंच नहीं करते हैं, या पानी का डिस्ट्रीब्यूशन, ज़मीन वगैरह का जो है वो
सरपंच नहीं करते हैं, या फिर कल्चरल फंक्शंस, जैसे मैंने पहले कहा कि सांस्कृतिक, कल्चरल और ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल फंक्शंस बहुत हैं, वो कभी भी सरपंच के रोल में नहीं आता है। तो ज़रूरी ये है, जैसे हमने रिकमेंडेशंस में कहा है, कि पंचायत एक्ट में भी गोबा का रोल और गोबा लंबरदारी एक्ट में भी जो है वो एक साफ़ हो जाए कि इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है, इनके क्या ज्यूरिसडिक्शन है और इनका क्या ज्यूरिसडिक्शन है। वो अगर हो जाए तो दोनों साथ बिल्कुल चल सकते हैं। और एक्चुअली लोग तो कहते हैं कि दोनों को साथ होना बहुत ज़रूरी है, हम केवल एक से नहीं चला पाएंगे, दोनों होना बहुत ज़रूरी है। वो ऐसे मतलब जग हर गांव में यही लोगों ने बोला, हर एक ने, मतलब 100% लोगों ने ऐसा बोला। तो मे बी 73rd अमेंडमेंट में इंकॉर्पोरेट करना बड़ी बात होगी, लेकिन हिल काउंसिल एक्ट में कर सकते हैं। हाँ, इसमें ऐसा है कि अगर 6 शेड्यूल आ गया, इसीलिए हमने रेकमेंड किया, और आप मतलब यहाँ पे तो बहुत दिनों से डिमांड रही है, 6 शेड्यूल आ गया तो जैसे कि सिक्किम में उन्होंने जुम्सा, जो गोबा जैसा ही सिस्टम है हेडमैन का, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन मिला, वैसा ही यहाँ हो सकता है। 5th शेड्यूल आया, 5th शेड्यूल है शेड्यूल्ड एरिया, पंचायत शेड्यूल्ड एरियाज एक्सटेंशन एक्ट, मतलब जो 73rd अमेंडमेंट है उसको आदिवासी एरियाज़ में एक्सटेंड जो किया गया, उस एक्ट में भी 1996 का जो एक्ट है उसमें भी कहा गया कि जो लोकल कस्टमरी रूल्स हैं, जो ग्राम सभा के द्वारा जो उनके पारंपरिक रूल्स हैं, वो चालू रह सकते हैं। मतलब इंडियन रूल्स तो रहेंगे ना, स्टैट्यूटरी रूल्स तो रहेंगे, उसके साथ में कस्टमरी रूल्स या कस्टमरी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी अपनी जो गवर्नमेंट, वो चालू रह सकती है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनली और कानूनी तरीके से इसको अगर सशक्त करना है तो 6th 5th शेड्यूल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, या फिर अगर लेजिस्लेचर मिलता है तो उसमें भी उस तरह का मतलब रिकग्निशन दिया जा सकता है, और हिल काउंसिल के थ्रू भी हो सकता है, क्योंकि हिल काउंसिल के एक्ट में भी है कि लद्दाख के पारंपरिक स्थिति को लेते हुए जो पॉलिसीज़ वगैरह बनानी है वो हिल काउंसिल आगे बढ़ा सकती है, तो उससे भी हो सकता है। अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहे हैं कि ये होना जरूरी है। 73 माने इट हैज टू गो टू पार्लियामेंट थ्रू द चैनल नहीं, हाँ, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब अगर 6th 5th शेड्यूल करना है तो इट हैज़ टू गो थ्रू हिल काउंसिल लेवल में दे कैन, बिकॉज आई एम एक्सपीरियंसिंग द गोवा सिस्टम हियर, सो इट इज इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड निटी-ग्रिटी। ट्रू, हिल काउंसिल से भी हो सकता है, लेकिन हमने ये पाया एक्चुअली 3 साल पहले हमने हिल काउंसिल का भी स्टडी किया था, बिफोर अगस्त 2019, बिफोर यूटी बना, उसके पहले का हमने पाया कि हिल काउंसिल के ऑन पेपर तो हैं कुछ पावर्स वगैरह, बट एक्चुअली इन रियलिटी जो है उस वक्त JNK से हो रहा था सब कुछ, श्रीनगर से हो रहा था, अब दिल्ली से हो रहा है, तो एक्चुअल पावर्स जो हैं वो या तो नहीं है या फिर वो कैपेसिटी नहीं है वो पावर्स को इम्प्लीमेंट करने की। इसलिए हमारा कहना है कि हिल काउंसिल तो ज़रूर करे, लेकिन साथ में ये कानूनी तरीके से, मान लीजिए 5th शेड्यूल नहीं आता है, फिर भी कम से कम लंबरदारी एक्ट, पंचायत एक्ट एंड हिल काउंसिल एक्ट, इन तीनों एक्ट्स में अगर रूल्स आ जाते हैं स्पेसिफाइंग कि ये गोबा के फंक्शंस हैं, उससे भी हो सकता है। तो उसके लिए फिर आपको पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट के पास जाने की ज़रूरत है। सर, आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से मिले जी, तो उनका क्या रिस्पॉन्स था आपके ये रिकमेंडेशन? काफ़ी पॉजिटिव था। उन्होंने कहा कि उनका ये कहना था कि मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए और सरकार के लिए, दोनों के लिए गोबा होना ज़रूरी है। हम भी यूज़ करते हैं गोबा को, लोग भी इसके लिए फ़ायदा उठाते हैं, तो इसको स्ट्रॉन्ग बनाना बिल्कुल सही है। आपने जो रिकमेंडेशंस दिए हैं वो हम लोग कंसिडर करेंगे, बल्कि 60 ईयर वाला जो लिमिट है उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं, थोड़ा सा सैलरी बढ़ाने का भी कंसिडर कर सकते हैं। तो मतलब ये तो एक ओरल बात हुई है, अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी ये लगता है कि गोबा का खुद का भी आवाज़ यहाँ पे बढ़े। इंडिविजुअली गोबा कोई कुछ बोलेंगे तो कोई सुनने नहीं वाला है, एक कलेक्टिव आवाज़ हो, और उसमें फिर NGOs भी जुड़ें, LBA जैसी संगठन भी जुड़े। LBA के प्रेसिडेंट ने भी कहा कि हम बिल्कुल इसमें सपोर्ट करना चाहेंगे। तो सबकी तरफ से अगर आवाज़ उठती है तो फिर सरकार को मानने के लिए थोड़ा आसान होता है। सर, इधर एक दिक्कत ये भी है ना, एक तो रेवेन्यू या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज गोबास है, और हाँ। अभी ये अर्बन में, सिटीज़ में बहुत सारे गोबास हैं लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं है, तो ये भी दिक्कत नहीं आ सकता है, इनको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उस पर क्या रहेगा? उसमें एक्चुअली यहाँ पे गोबास करीब 10-15 जो लेह के गोबास हैं उनके साथ मीटिंग हुई थी हमारी लास्ट मई में। तो जो अनरजिस्टर्ड गोबास थे उनका कहना है कि हमारा अभी भी लोग इस्तेमाल करते हैं कि सर्टिफिकेट देना हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना हो, ये सर, लेकिन वो लीगली वैलिड है या नहीं, वो कन्फ्यूजन है।
तो हमारा भी, और लेकिन रजिस्टर्ड जो गोबास हैं उनका कहना था कि हम ये फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे नए सेटलमेंट एरियाज़ में है ना जो अनरजिस्टर्ड गोबास हैं, तो उनका ये कहना था कि उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस के साथ उतना रिश्ता नहीं है, उनका एक्चुअल जुरिस्डिक्शन किसी और गांव में है, बाहर के हैं, लेकिन अभी यहाँ कर रहे हैं, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन है। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी और अच्छी तरह से चर्चा करके जो है, अगर असल में सोशल इनका फंक्शन हो रहा है और लोग उसको इम्पोर्टेंट मान रहे हैं, तो किसी तरीके से रिकग्निशन की ज़रूरत पड़ेगी, पर फिर वो रजिस्टर्ड गोबास के बीच में और उनके बीच में कुछ ऐसा और झगड़ा ना हो जाए, इसके लिए थोड़ा और डिस्कशंस वगैरह की ज़रूरत है।